Hello class 7. Today we are going to study about parallel lines. So let us try to know what are parallel lines. So two lines are said to be parallel if each other. Two lines are said to be parallel if the distance between them is equal everywhere. Mean that अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा तो इन दोनों लाइन को हम पैरेलल लाइन कहेंगे। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, चाहे जितना भी इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको पीछे बढ़ाया जाए, इसके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम रहता है। पैरेलल लाइन ऐसे हो सकते हैं, पैरेलल लाइन ऐसे हो सकते हैं, पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकते हैं। बस रूल इज द सेम, distance between them should be equal and they are not intersecting each other. Now the next term is transversal. So dear student, if two lines are there and a slanting line or any line which cuts these two lines, that will be called transversal line. That will be called transversal line. So parallel lines and this is transversal line. Now dear student, when a transversal cut two lines, then we have total 1 2 3 4 5 6 7 8 angles. So when a transversal cut two lines, so it form 8 angles, total 8 angles. 4 angles are between these two lines. So these 4 angles, 3 4 5 6, these 4 angles are called interior angles, and two line above this line 1 and 2, and two angles down this line 8 and 7, these two and these two are called exterior angle. So in 8 angles, these 4 angles are called interior angles, and these two and these two will be exterior angle. So again I repeat, when a transversal cut two lines, then total 8 angle form. 4 angles are between these two lines, they are called interior angle, and two lines above the line and two angles above down this line. So total these are exterior and these are interior angles. So dear students, if these two lines are parallel, there is an interesting relation between these angles. Suppose that if these two lines are parallel and a transversal cut these two lines, is 1 2 3 4 5 6 7 8. So dear student, there are total 8 angles and these two lines are parallel. Now some special names has been given to these angles. These I have already taught you that this one is interior angle and these two are exterior angle. Now this angle, ये एंगल इस लाइन के ऊपर और यहाँ इस साइड लाइन के ऊपर 1 and 6, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। शॉर्ट फॉर्म में मैंने एंगल का सिंबल बना के ऐसे लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल। 1 and 6 लाइन के ऊपर वाला, लाइन के नीचे वाला। सेम वे 2 लाइन के ऊपर और 5 लाइन के ऊपर। 2 और 5 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे लाइन के नीचे वाला 4 लाइन के नीचे 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे इस साइड में आ जाइए, 3 और ये 7 ये भी लाइन के नीचे और लाइन के नीचे, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और डियर स्टूडेंट,
व्हेन दीज टू लाइंस, सभी लाइंस में नहीं, जब ये दोनों पैरेलल लाइंस होते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स दैट अगर ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो ये 6 भी 50 डिग्री ही होगा। वैसे ही अगर ये 2 30 डिग्री है तो ये 5 भी 30 डिग्री होगा। तो आपने करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जाना कि इधर एक साइड की अगर बात करें तो लाइन के ऊपर और इधर भी लाइन के ऊपर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। वैसे नीचे 4 और 8 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इधर 2 और 3, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग होगा। एक एंगल आपका आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर, पहली बात तो वो एंगल इंटीरियर होना चाहिए। तो ये हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल हैं, तो जो ऐसे ऐसे अगर क्रॉस बनाएं तो 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और 4 और 5 इंटीरियर होंगे, यानी 3 और 6 ये है आपका अल्टरनेट एंगल। ये भी आपस में इक्वल होता है, कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। सेम वे 4 और 5 विल बी कॉल्ड इंटीरियर एंगल and they are also equal, means that if 3 is equal to 150, then 6 is also 180. Now one more thing I want to tell you, vertically opposite angle, जब भी ऐसे क्रॉस तरह का सिंबल बनता है बच्चों, तो ये एंगल और ये एंगल, these two angles are vertically opposite angle and they are equal। ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये और इसको कहते हैं, जब भी आपका क्रॉस बने, ऐसे बने क्रॉस, ऐसे बने क्रॉस या ऐसे बने क्रॉस, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और वे आपस में इक्वल होते हैं। तो दीज वेयर द some facts about parallel line. There is one more fact about this special angle। एक ही ओर के ये 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल है, एक ही ओर के, जैसे इस इंटीरियर एंगल में 3 और 5, इन दोनों का भी एक स्पेशल नाम है, 3 और 5 का और 4 और 6 का। इसको कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स वी सेड। 3 और 5 को इंटीरियर एंगल है और 4 और 6। और जब जो दोनों लाइन ये पैरेलल होते तो इसमें क्या रिलेशन होता है, ये एक ही को इंटीरियर एंगल, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, आपके क्वेश्चन में पेज नंबर G18 में दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे कुछ लाइंस बनाए गए हैं, 1 2 it is 3 it is 4 5 6 7 and it is 8, and the question is if the straight lines L and M are parallel, find the relation between the following angles। तो पहला जो आपका पूछा है रिलेशन एंगल 2 और एंगल 6 में, तो देखिए ऐसे ये दोनों इंटीरियर एंगल है, एक लाइन के इस बगल ऊपर है और एक लाइन के इधर इस बगल है, तो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट। शॉर्ट फॉर्म में अल्टरनेट को ALT भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट INT मीन्स इंटीरियर, और एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। द 3 and 7 सेम वे। अगला क्वेश्चन है 3 और 7, ये भी क्या है आपका अल्टरनेट, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 and 3, देखिए लाइन के ऊपर पैरेलल लाइन दोनों है, इसके ऊपर 1 है और इसके 3 है, तो 1 और 3 में क्या रिलेशन होगा, वे दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं 1 एंड एंगल 3, वो भी आपस में बराबर होते हैं। सो 1 and 3 सेम वे 8 and 6 अगेन लाइन के ऊपर दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, वो that will be also equal। 8 and angle 8 is equal to angle 6, so these are also equal। and after that angle 4 angle 2 and angle 2, these are also, देखिए लाइन के नीचे these are corresponding angle, they will be also equal। and after that 5 and 7, 5 और 7 again this is also 5 and 7 will be also corresponding angles। and after that 7 and 6
7 एंड 6 में क्या रिलेशन होगा, देखिए ये इंटीरियर एंगल है और एक ही ओर के इंटीरियर एंगल है, तो जो एक ही ओर के इंटीरियर एंगल होते दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। तो देन को इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्ट्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय बाय।